Namaste, everyone, all the teachers and the wonderful students who have joined for this webinar, this discussion on hopefully some topic that would be of interest to all of you. So my name is Belu Mehra, and I'm joining you all from Sri Aurobindo Society, Pondicherry. Actually, right now I'm joining you from my home, but I'm part of Sri Aurobindo Society, of which, you all know it's a large international organization. Your school is also part of that under the educational wing, Auro Schools, Sri Aurobindo Center for New Age. And I look after a small department at Sri Aurobindo Society, and we are called Bharat Shakti, which has the tagline of India from past dawns to future noons. That's a line from Sri Aurobindo's essays on the Gita, where he says the ideals of ancient India and the knowledge that the Gyan Parampara that we have inherited from India is great, but that's the past dawn, and we have to go towards future noons. So that's why the future is all of you, the students, the children, the younger generation, and of course the teachers who are closely working with you all. So we try to do various programs connected with the theme of reawakening the Bharat Shakti and education for new India, for building new India. So when Meera asked that we should, collaborate on some program, I thought maybe we'll start with first some sort of an online interaction over the next 3 days, today, tomorrow, and day after. And then we'll see how it goes. So I'm joined here by some of my team members. There's one person who's currently, working at his other workplace, so he's not here. But I'm joined by Biswajita. She is currently in her hometown, but she's joining us from there. She helps me with a lot of admin works as well as also design assistance on various projects that we do. We have an online publication also. So she helps me with those works also. And when we conduct programs, either at Pondicherry or at other locations, we work with several schools and colleges from time to time. And also Narendraji has joined us. He's currently in the office at Sri Aurobindo Society. He's an author and a research associate at Bharat Shakti. He writes for our online publications and writes his own books as well on various topics. So together we work on various projects and programs. My background is in education. I've been a teacher at high school level also. And then after I went for my PhD, and after finishing that in education, I went into university level teaching in the US as well as in India. So I've been doing several projects, including teaching courses at Pondicherry University also, and with Oro University and few other institutions as well. So what Meera and I thought we'll take up this broad theme of conscious connections. And within that, we have identified 3 specific topics. One, the relationship or the connection between self and others. So taking a look at the notion or the concept of harmony in relationships. Also, another one is specifically for teachers. The one we are hoping to do tomorrow, which will be more about growing together as teachers, as colleagues, beyond collegiality. But maybe if Meera feels we should have students as well, I'll tweak my presentation and my discussion accordingly. I'll talk with her afterwards. And the third one is again of a broader interest to all, which is the idea of connecting with culture. How are we going to facilitate bringing the spirit of India, what I'm calling Indianness,
in our classrooms. So with these three, so connecting with others, connecting as colleagues, as co-workers, also connecting with the larger society and culture. So does that make sense with the idea of conscious connections? So I want to keep these interactive. So maybe I'm going to ask you also to share, open up, ask questions, share your thoughts, share your reflections, not so that it's not one-way traffic. Is that okay? Right now you can do thumbs up and just let me know that if it's okay. Yeah. All right. So today good, great. So today we'll take up the first subtopic in our larger theme, connecting with others, self and others, and exploring the idea or ideal of harmony in relationships. So I have a question before I start, especially for the students who are joining us. Maybe one or two of you, maybe two of you can share just very quickly, what do you understand by harmony in relationships? What do you think harmony means? Anything? Okay, maybe let me even simplify the question. What do you think is the one key factor that creates disharmony between people? Among friends, yes, somebody has raised their hand, but you will have to, I don't know if there is a microphone or how your voice will be coming up. Not, not respecting each other in a relationship. Not respecting each other. Not respecting each other. Okay, so that creates disharmony. So lack of respect. That's good. That's good. Anybody else? One more answer from the students before we move on to teachers. See, students, you have to make your teacher's job easier. You have to throw the answers so that they don't have to think. Then they'll build up on the insight, the wisdom that you will share. So lack of respect, we have identified as one. What else? Huh? Okay, let's see. Let's hear from the teachers. One key factor that creates disharmony. समानी वह आकृति समान हर मेरा की वह खाना अंतर कि मन बच्चे में सबसे पहले हार्मनी अपने अंदर में चलती है तब उनको हार्मनी बच्चे को हासिल और वो होता है कि मन बच्चे और कर्म से हम एक ही तरह का कार्य करें ऐसा नहीं कि सोच कुछ और रहे हैं कर कुछ और रहे और बोल कुछ और रहे। ओके, ठीक है ठीक है। तो मतलब कि सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, तो उसकी कारण से डिसहार्मनी। ओके, आपकी आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रुक के आ रही है, तो मुझे पूरा क्लियरली तो नहीं सुनाई दिया, पर जितना समझ में आया आप ये कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा में समन्वय नहीं है, राइट? कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। आपको क्या माइक्रोफोन के पास जाना पड़ेगा? सॉरी।
नमस्ते। अभी आपको सुनाई देगी? जी जी। मैं ये कह रही थी कि हारमनी जो है वो जैसे श्री अरविंदो कहते हैं कि नियर टू पार, तो हारमनी सबसे पहले हमारे अंदर में होनी चाहिए, और वो तब होती है जब हम मन कर्म और वचन से एक तरह का ही कार्य करें एक समय में। ऐसा नहीं कि बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है और करते कुछ और। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत सही। तो अगर हमारे अंदर हारमनी है, हमारे अंदर जो हम सोच रहे हैं वही हमारी कथनी में है, वही हमारे कार्य में है, तो हमारे अंदर अगर हारमनी है तो वो हमारे बाहर भी एक्सप्रेस होगी, बाकी के साथ रिलेशन में भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि आपने श्री अरबिंदो के एजुकेशनल प्रिंसिपल को उसके साथ कनेक्ट किया कि फ्रॉम नियर टू फार। तो नियर तो सबसे पहले हम अपने आप के ही नियर हैं, फ्रॉम नियर टू फार। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू। आपका नाम क्या है मैडम? मैं आपसे मिली हूँ। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यस। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आई थिंक आपके कुलीग भी शायद कुछ कहेंगे। Namaste. What I feel that ego, due to ego भी डिसहार्मनी हमारी ज्यादा होती है। अगर हम अपना सेल्फ ईगो असाइड करके रखें तो we can be more harmonious. राइट राइट, वेरी गुड। आई थिंक आपने बिल्कुल जड़ पकड़ी है कि सारा खेल ही ईगो का है। करेक्ट। तो अगर हम ईगो को अपनी पहले तो समझ पाए और उसको कंट्रोल कर पाए, नियंत्रित कर पाए। ऐसा नहीं है कि ईगो को हमें खत्म करना है एकदम से, लेकिन ईगो को या अपने जो अंदर इम्पल्शंस हैं उनको एक चैनलाइज करना है, उनको डायरेक्ट करना है। तो ईगो एज अ मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उस पर भी थोड़ी हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू, वेरी नाइस। तो जिन एक स्टूडेंट ने हमें एक बताया था लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट को हम ईगो से भी कनेक्ट कर सकते हैं शायद। देखते हैं आगे क्या हमें पता चलता है। तो इफ इट इज ऑल राइट, मैं आपको कुछ थोड़े से मदर श्री अरबिंदो के वर्ड्स के कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूंगी, और बीच बीच में फिर हम लोग बात करते चलेंगे। इज दैट ओके? ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो लेट मी ओके, सबको दिख रहा है ये? नरेंद्र जी, इज दिस विजिबल? Yes, yes. ओके ओके, ऑल राइट। Whether you can make it full screen? या इट इज फुल स्क्रीन। Full screen तो दिख नहीं रहा डिस्प्ले में। ओके। वहां पे मीरा दी ठीक से दिख रहा है? ओके, लेट्स सी पहले क्या, पहले हमें मदर क्या बताती हैं। In life, your relations with others are like a mirror which is presented to you so that you can see more easily and clearly the weakness that you carry in others, carry within you. Your relation with others are like a mirror. इस बात से हम क्या समझते हैं कि जो हम बाकियों में कमियां देखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी हैं, इसीलिए हम दूसरों में वो ही रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। सो आवर रिलेशंस विद अदर्स आर लाइक अ मिरर, और उस मिरर में हम रिफ्लेक्शन अपनी ही छवि देख रहे हैं। एक जगह पे मदर कहती हैं कि अगर हमें किसी में
या किसी भी सिचुएशन में या किसी भी रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में, किसी के साथ, अपने कुलीग्स में भी, अगर हमें कोई हमेशा हमें मड दिखाई देती है, शी यूजेस दैट एग्जाम्पल, इफ वी ऑलवेज सी मड everywhere, all around, it means, it suggests that there is mud somewhere within us. तो जो हमारे अंदर है वो ही कई बार बाहर हमें रिफ्लेक्ट होके दिखता है. So that means we have to always bring the focus back to ourselves first. What is it that the weaknesses that I am carrying within me, which are reflected through my relations with others? Does that make sense? Yeah? Let's see what else she says. अब बेसिस क्या है हमारे, जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हमारे परिवारजनों के साथ हो, हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, एक्सटेंडेड रिलेशंस के साथ हो, उसका बेसिस जनरली हम कहते हैं लव है, ह्यूमन लव, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिवाइन लव की प्रभु के साथ किस तरह की भक्ति प्रेम. अभी हम सिर्फ अगर ह्यूमन लव की बात करें, अगर ह्यूमन लव बेसिस है तो ह्यूमन लव के बारे में मदर ने क्या कहा है, बहुत ही आई ओपनिंग सी बात है. ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं कहाँ डिसहार्मनी आ रही है. ह्यूमन लव जो है, मदर ये बोलती हैं कि हमारी आत्मा की ये नीड नहीं है. आवर सोल इन इट्स जर्नी टू प्रोग्रेस. आप लोग सब श्री अरबिंदो की संस्था में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप ये बात से अच्छे से फेमिलियर हैं कि अल्टीमेटली द एंटायर लाइफ्स पर्पस, एजुकेशन का भी पर्पस अल्टीमेटली ये है कि सोल की ग्रोथ हो, सोल की प्रोग्रेस हो. लेकिन जो सोल की प्रोग्रेस के लिए जरूरी नहीं है ह्यूमन लव, दो इट हैज इट्स राइट प्लेस एंड राइट वैल्यू, और उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं इफ देयर आर क्वेश्चंस. लेकिन ईगो की प्रोग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक नीड है, एक तरह की कंसेशन है जो कि नेचर ने दिया है. अब इसको समझने के लिए हमें पहले ईगो की बात करनी पड़ेगी. अभी एक टीचर ने बताया था, आपके एक सर ने बताया कि सबसे बड़ा कारण है डिसहार्मनी का कि ईगो कॉन्फ्लिक्ट में आती है. बट व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड ईगो? आप में से कुछ लोगों ने सुनी होगी ये बात कि श्री अरबिंदो ने एक जगह कहा है, ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार. जनरली क्या होता है जब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक उत्थान की, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की, लाइफ में इनर प्रोग्रेस की, हम ये कहते हैं ईगो को हटाओ, सिर्फ सोल पे फोकस करो. लेकिन श्री अरबिंदो का और मदर का जो पूरा इंटीग्रल फिलॉसफी है, जिसके बेसिस पे एक्चुअली इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया, जो आइडियल आया, जो कि इन औरों स्कूल्स में चल रहा है, जो इंटीग्रल योगा का उनका एक पूरा मतलब एक तरह से प्रैक्टिस है, एक पूरा सिस्टम, एक ज्ञान परंपरा जो उन्होंने एक नई हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में दी है, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ में प्रोग्रेस के लिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ईगो कैन बी अ हेल्पर. कैसे ईगो हेल्प करती है, उसके लिए हमें ईगो को जानना होगा. सो लेट मी फर्स्ट show you something else, very simple definition of ego. So what is this thing called ego? EGO 3 लेटर का शब्द है, लेकिन दुनिया में सारी वॉर्स इस वजह से होती है क्योंकि ईगो सिर्फ हमारे और आपके इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं है, सिर्फ कि मेरी ईगो है, आपकी ईगो है, XYZ सबकी ईगो है, या सब ईगो के पुतले बने घूम रहे हैं. ईगो ग्रुप में भी होती है, ईगो एक संस्था में भी होती है, ऑर्गेनाइजेशनल ईगो होती है, नेशनल ईगो होती है, एक समाज की, समुदाय की ईगो होती है. तो ईगो क्या चीज है?
ईगो एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है जो नेचर ने दिया है। इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट की ये जरूरत है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हमें अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को समझ फॉर्मुलेट करने में, को बनाने में हेल्प करता है। दैट इज वाई श्री अरबिंदो सेज ईगो वाज द हेल्पर। दैट मीन्स एक तरह से हम जो हैं, हम एक इंडिविजुअल सिंगल पीस में नहीं है, हमारे अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं। एक बात कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि इसकी बहुत मल्टीपल पर्सनालिटीज है। अगर सच में समझा जाए हमारी कौन है हम, तो हम सब मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं, सब मल्टीपल पर्सनालिटीज लेके घूम रहे हैं। नाउ उस मल्टीपल पर्सनालिटी में एक जो सबसे बड़ा पार्ट है जिससे हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े मॉडर्न पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम सबसे पहले अपने माइंड से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मेरी सोच है, ये मैं ऐसे सोचता हूं या मैं ऐसे सोचती हूं, वो माइंड है। फिर हमारे इमोशंस होते हैं, ये मैं फील करती हूँ, ये मैं ऐसे अपना, ये मेरे अंदर भाव हैं, ये इमोशंस हैं। उसको हम लाइफ एनर्जी कहते हैं, लाइफ प्लेन कहते हैं। श्री अरबिंदो की टर्मिनोलॉजी में उसको हम वाइटल प्लेन कहते हैं। वाइटल यानी कि जो हमारा प्राणमय है, जो हमारी प्राणिक शक्ति है, जिसमें हमारी फीलिंग्स, डिजायर्स, इम्पल्सेस, इमोशंस, ये सब आते हैं। वो सबसे बड़ा पार्ट है एक्चुअली हमारे अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबसे कठिन है कंट्रोल में लाना। और फिर हमारा एक फिजिकल पार्ट है, हमारा जो बॉडी, जिसको हम आउटर उससे देखते हैं। इन तीनों को मिला के हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, जो कि ईगो है। ईगो एक तरह का मास्क है जो हम अपने ऊपर लगा के घूमते हैं कि ये मेरी पहचान है। वो रियल पहचान नहीं है, लेकिन वो हमें इंडिपेंडेंटली, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करती है। नहीं तो मुझे पता ही नहीं रहेगा कि मेरी सोच दूसरे की सोच से अलग क्या है, मेरे इमोशन में कौन सा कलर डिफरेंट है बाकी की इमोशन से। सो अपनी एक इंडिविजुअलाइज्ड आइडेंटिटी बनाने के लिए, और मदर इस बात पे बहुत एम्फसाइज करती हैं अपनी एजुकेशन की राइटिंग्स में, कि अगर हमें जीवन में प्रोग्रेस के पाथ पे चलना है, तो हमें पहले अपने आप को इंडिविजुअलाइज भी करना है। उस इंडिविजुअलाइजेशन के प्रोसेस में हमें यह भी पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या पोटेंशियल है। किसी को एक तरह की आर्ट फॉर्म बहुत अच्छी लगती है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई बहुत अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है, कोई बहुत अच्छे से एक लिविंग स्पेस को हार्मोनियसली डेकोरेट कर सकता है। किसी में कोई कहीं पे सटल कैपेबिलिटी है। आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन। Yes, connection is lost. Wait, resize the window. Yeah, this is not going to work. प्रॉब्लम उनके यहाँ है या आपके यहाँ है? मेरी यहाँ क्या होगी, वो तो उनका गया सीन। दे कुडंट, उनका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, यस। ओके, इंटरनेट इशू, हाँ। ऑल राइट, लेट मी गो बैक टू दैट पार्ट। इस पॉइंट को खत्म करने के बाद देन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। ओके, सो
हम बात कर रहे थे ईगो और इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, करेक्ट? सो ईगो इस तरह से हेल्पर है कि ईगो हमें इंडिविजुअल एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, नेचर ने दिया है। अब इस इंस्ट्रूमेंट नेचर ने दिया है ये सोच के कि नहीं कि आप जिंदगी भर इसको पकड़े रखोगे, इसको इससे आगे नहीं प्रोग्रेस करना चाहोगे, क्योंकि ईगो के साथ प्रॉब्लम ये है, जो दूसरी इशू आ जाता है वो है ईगोइज्म, जो कि सारी प्रॉब्लम की जड़ है। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड ईगोइज्म? ईगोइज्म का एक बहुत सुंदर, बहुत सिंपल डेफिनेशन मदर ने एक जगह दी है। When you want to pull everything towards you and other people do not interest you, that is called egoism. अब ईगो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इतनी जल्दी अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। उसके लिए बहुत लंबी साधना, आध्यात्मिक साधना की जरूरत है, बहुत लंबे योगा के प्रोसेस की जरूरत है। लेकिन ईगोइज्म पे हम धीरे धीरे कंट्रोल ला पाएंगे। ईगोइज्म को हम धीरे धीरे उसका जो होल्ड है अपने पे वो रोक पाएंगे, वो रोक सकते हैं। उसके लिए भी एफर्ट करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि डिसहार्मनी कैसे है और क्यों है, वो ईगो की वजह से नहीं है, एक्चुअली टेक्निकली ईगोइज्म की वजह से है। जब हम किसी भी अन्य व्यक्ति को या बाकी लोगों को उनके फीलिंग्स की, उनके भाव की, उनके टाइम की, उनकी, जैसे किसी ने कहा था लैक ऑफ रिस्पेक्ट, वो भी इसी का पार्ट है कि हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, वो हमें इंटरेस्ट नहीं करता है ये सोचना कि क्या उनके साथ क्या हो रहा होगा। एवरीथिंग इज अबाउट मी 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 मी, द होल वर्ल्ड एग्जिस्ट्स फॉर मी। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे सुपीरियर्स हैं, मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, वो मुझे मेरी मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए क्या ऑफर कर सकते हैं। दैट इज अ सिम्टम ऑफ ईगोइज्म। इट्स एन ईगोइस्टिक टेंडेंसी कि दुनिया है बिकॉज दुनिया को मेरे इर्द गिर्द घूमना है, करेक्ट? तो इस ईगोइज्म की वजह से ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। आई एम गोइंग टू स्टॉप शेयरिंग फॉर अ मिनट बिकॉज आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू एंड आस्क यू सम क्वेश्चंस। ईगो और ईगोइज्म में डिफरेंस कुछ हद तक क्लियर हुआ? आगे आप लोग आके अपने माइक्रोफोन के पास जाके बता सकते हैं प्लीज। ईगो और ईगोइज्म में डिफरेंस कुछ समझ में आया? आइए, यस। और मैं और मेरी पहचान, थोड़ा थोड़ा और आगे आइए प्लीज। मैं और मेरी पहचान, ये है ईगो। और सबको, ये मेरे रिश्तेदार, ये वो जो मेरे परिवार से और मेरे समाज से मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ईगोइज्म। वो ईगोइज्म है। सो जो डिसहार्मनी आती है वो बिकॉज ईगोइज्म की वजह से आती है, राइट? करेक्ट। स्टूडेंट्स में से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप्स। भाई बहन के साथ तो चलता है, सिबलिंग्स या पेरेंट्स के साथ वो एक अलग इशू है, बट फ्रेंड्स के साथ आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि आप, या कोई अपना ऐसे कोई एक्सपीरियंस है जो बताना चाहेंगे जिसमें आपको लगा कि ईगोइज्म बीच में आड़े आ रहा है? गर्ल्स बहुत चुप बैठी हैं, क्या बात है? या तो मीरा दी ने सबको इतना योगी बना दिया है कि सब हारमोनी में है। बट कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो जहां पे आपको लगा हो कि ईगोइज्म कारण बना हो डिसहार्मनी का बिटवीन फ्रेंड्स?
बताइए बताइए। नाम नाम नहीं लेना किसी का, ऐसे ही बता दीजिए, इंसिडेंट बताना हो तो। या कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपने ईगोइज्म के पार जाके हार्मनी क्रिएट की हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो? ओके, देन हाउ अबाउट दिस, वी से कि अब मूविंग फॉरवर्ड व्हेन वी हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट विद समवन, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कुलीग्स हो, जो भी हो, कहीं पे ऐसा डिसहार्मनी आ रही हो, तो व्हाट इज द वन थिंग वी कैन डू टू ऑब्जर्व कि ये क्या 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 हो रहा है। अगर हम अपनी ईगोइज्म को देखना हो कि कहाँ हमारी ईगोइज्म आगे आ रही है, तो व्हाट इज द प्रैक्टिस वी कैन डू? We can just take a pause and step back and see कि मेरे, जो मैं इसकी गलती पॉइंट आउट कर रहा हूं या कर रही हूं, पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं वो मुझ में तो नहीं है। दूसरी कि क्योंकि इट इज अ मिरर, द अदर पर्सन इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, दिस रिलेशनशिप इज बीइंग लाइक अ मिरर। और कहीं मैंने अपनी ईगोइज्म में आके ऐसा तो नहीं सोच रही हूं मैं कि ये जो दूसरा व्यक्ति है, या जो ये भी मेरा फ्रेंड है, या मेरे मदर फादर हस्बैंड वाइफ, इवन माई ओन चाइल्ड, कि दे शुड फील एग्जैक्टली द वे आई थिंक, and they should be actually serving my desire, my need। अगर वो है तो इसका मतलब मेरा बिहेवियर ईगोइस्टिक बिहेवियर है, करेक्ट? सो दैट इन द प्रोसेस ऑफ स्टेपिंग बैक, जो हम थोड़ा सा एक पॉज ले लेंगे, या कई बार लिटरली, कई बार आपने देखा होगा कि मुझे तो याद है मेरे बचपन में ऐसा बहुत होता था, जब हम भाई बहन लड़ते हैं या कुछ है, पेरेंट्स हमेशा ये कहते थे अलग अलग कमरों में चले जाओ, राइट? फिजिकली सेपरेट कर देते थे, फिजिकली डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, इसलिए ताकि एक स्टेपिंग बैक, लिटरली फिजिकली एक स्टेपिंग बैक स्पेस मिल जाता है, राइट? अभी भी होता है, बड़े लोग आपस में जब झगड़ते हैं अलग अलग कमरों में सोएंगे, सो दैट फिजिकल स्पेस ऑल्सो क्रिएट सम सेपरेशन। लेकिन उस सेपरेशन में करना क्या है, ये नहीं कि यही लोग सोचते रहें कि उसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे हर्ट किया, उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया। दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट मोर हार्मनी, बट रादर when, to what extent my egoism was coming out। आई नो ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, पर जो भी चीज, जैसे कहते हैं ना, एनीथिंग दैट इज वर्थ डूइंग इज नॉट इजी, दैट इज द योगा। योगा कोई पहाड़ों में जाके, केव में जाके, वो सब आंख बंद करके तपस्या नहीं है। इंटीग्रल एजुकेशन बेसिकली इंटीग्रल योगा का ही पार्ट है। आप जो सब कार्य कर रहे हैं, टीचिंग का हो या एज अ स्टूडेंट, you are in a way participants in the process of evolution of consciousness, which is nothing but yoga. Yoga is practical psychology, Shri Aurobindo says। तो अपने अंदर इस मंथन को करना, इसको भी, ये भी योगा है। सो कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, इंटीग्रल एजुकेशन नाम दे दीजिए, XYZ दे दीजिए, बट दिस इनर introspection, this inner journey, this inner thinking of things is, it is not just through mind that we are thinking, we are actually, जब हम थोड़ा अकेले में बैठ के सोचते हैं, we are very honest, we can be very honest with ourselves। So it's not about finding faults in others, it is more about finding the play of ego or egoism within myself। और उस स्पेस के बाद, उस स्टेपिंग बैक के बाद जब हम दोबारा आते हैं, वी जस्ट कैन स्टार्ट फ्रेश। नथिंग वुड हैव प्रोबेबली चेंज्ड, बट आवर एटीट्यूड चेंजेस। नेक्स्ट टाइम हार्मनी जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट टाइम वी आर मोर फॉरगिविंग, मोर जेनरस टूवर्ड्स अदर्स।
एंड वी अंडरस्टैंड कि ठीक है, वो उनकी भी अपनी ईगो की स्ट्रगल है, उनका भी अपना वो जर्नी चल रही है. So they are also in their own way progressing. I am also progressing in my own way. It's up to me how fast I want to progress and what I want to hold on to. Correct? तो कोई क्वेश्चन है अभी इस पॉइंट, इतनी जो हमने अभी बात की है, बिफोर वी टेक अप 1 or 2 more points? जी. थोड़ा सा आगे आके कहना पड़ेगा. So at times, when you think back and can't make that connection, see the reflection, understand the attitude of someone, and you can't connect what you see, you can't connect within yourself. Because that happened to me a few times. I saw a safer mode to me that I should try and tolerate and find a space of empathy for the person. Well, that also, the fact that we sat back and reflected and tried to change our attitude, could that also be seen as, even though we could not connect to their actions, but the fact that we thought about it and tried to sympathize and empathize, that's still just, come under trying to resolve. Yeah, okay. So if I understood the question correctly, थोड़ा सा बीच बीच में वो voice break हो रहा था. That you are saying in a way more saying back and also asking in some way that the very process of reflecting why this situation happened or what is within me, that also will cause a change in my attitude. Is that what you're asking? Yes. Yes. That even though we are aware of It's not, I think your internet connection is a little bit of erratic. it, Yeah, so there are 2-3 things. Yes. When I said yoga is practical psychology, it means exactly what you are saying, that it involves a process of becoming conscious of our movements within. Now, what are these movements within? Am I audible there? Or is your internet again gone? I think there is an internet issue. Okay, am I audible? Just somebody give me a sign or something. I don't know if, yeah. Okay, so what I was saying was, yeah, there is some movement. Yes, even though this inner process, I don't know what's going on. Are we back online? Sorry? We are. Okay. All right. So yes, just what was suggested earlier, correct, that inner reflective process is going to help us become conscious of the very subtle movements that happen within our vital part of the being.
वाइटल इज जो मैंने कहा, जहां पे हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, जो भी हमारे प्राणमय सत्ता से कनेक्टेड है, हमारे प्राणिक, हमारी लाइफ प्लेन से जो कनेक्टेड है। अब इसी वाइटल प्लेन में ही विल भी आती है, क्योंकि यहाँ पे ही डायनामिज्म है। अगर हमारे अंदर प्राणिक शक्ति है तभी हम कुछ काम करना चाहेंगे, तभी हमें एफर्ट करने के लिए भी क्षमता मिलेगी। लेकिन यही वाइटल है जो कि बहुत अनरूली हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप को, अपनी डिजायर को ही सच मानने लगता है कि इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे हर्ट हुआ, उससे बड़ा सच और कुछ है ही नहीं। अगर इस तरह की हम एटीट्यूड से रहेंगे तो वी कैन नेवर फाइंड हार्मनी। अब वाइटल को कंट्रोल करने के लिए माइंड, बिकॉज माइंड इज टेक्निकली अ हायर पार्ट इन अस, माइंड में कैपेबिलिटी है रीजन करने की, सही और गलत में डिस्टिंग्विश करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, एनालाइज करने की। सो माइंड कैन हेल्प अस इन दैट स्टेपिंग बैक प्रोसेस कि यस, अगर मुझे हर्ट हुआ है, इफ आई हैव, अरे यार, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, आई, Wi-Fi, so now we shouldn't have a problem. okay, now it's very clear. Yeah, Actually, you all are very clearly visible now. okay. Yes. Switch on. Yeah. But was my voice coming earlier okay? Do I have to repeat? Coming earlier, but the gaps was the problem here. Yeah. We've sorted it out now, I hope. Okay. Okay. So, yeah, I was just kind of explaining that whole process of stepping back and becoming conscious of the movement within us, the movement of the vital part in us. When we feel hurt, when we feel that somebody has taken advantage or this and that, all of that is part of the egoistic vital. Vital की अपनी एक ego है, माइंड की अपनी एक ईगो है। इतना तो डिस्क्रिप्शन डिटेल में मैंने बात नहीं की है, बिकॉज दैट्स अ होल स्टडी of studying of oneself. और मदर एक जगह कहती हैं, the main purpose of education is to know oneself and to become a master of oneself. So ये जो सारा खेल है, how do we bring harmony in relationships, in a way it helps us to know ourselves. क्योंकि बाकी लोग जिनके साथ हमारे रिलेशन है, they are acting as mirror, right? So in that sense, when we have a conflict, when we have a disharmony, if we consider it as an opportunity, I know it is easier said than done, but we have to try. We have to make the conscious effort of seeing it as an opportunity for progress. And that progress happens by stepping back, by seeing what was in me which became one of the reasons for disharmony. ये नहीं है कि सारा ही मुझे मेरी वजह से होगा, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो पार्ट है which added to the disharmony, and my yoga, my sadhana is to work on that. तो उसके लिए पहला जो स्टेप होता है वो कई बार एक्चुअली सबसे इफेक्टिव स्टेप तो ये है मदर को कॉल करना। जो भी, जिस पे भी हमें अपना फेथ है, इष्ट देव जो भी है हमारा। अब हम बहुत सारे लोगों के लिए हु आर कनेक्टेड विद मदर एंड श्री अरबिंदो, इट इज द मदर, सो दैट कम्स इंस्टेंटली। किसी के लिए श्री कृष्ण हो सकते हैं, श्री राम हो सकते हैं, कोई देवी हो सकती है, जो भी आपके इष्ट देव, जो भी हायर सोर्स में आपको श्रद्धा हो, टू कॉल दैट पावर टू ट्रांसफॉर्म इट। हमारे माइंड के एफर्ट से वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन हम उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। अवेयरनेस में ही कहीं ना कहीं सॉल्यूशन या उसको ट्रांसेंड करने की क्षमता छुपी है। लेकिन एक्चुअल जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिवाइन सत्ता ही कर सकती है। सो कॉलिंग दैट हायर लाइट, कॉलिंग दैट हायर पावर टू प्यूरिफाई अस ऑफ दैट वीकनेस। तो ये सब चीजें उस स्टेपिंग बैक प्रोसेस का एक पार्ट हो सकती हैं। दिस इज हाउ वी बिगिन टू shift very slowly, very gradually, shift our attitude. And
what is the objective? The objective is to loosen the hold of egoism. इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कहानियां हैं कि ये किस तरह से ये पाश हैं जो हमें बांधे रखते हैं पूरा जीवन। हमारे वाइटल का सबसे बड़ा पाश है, फिजिकल का पाश है कि जब हम किसी से दूर होते हैं, फिजिकल सेपरेशन होती है, तो हमारी लॉन्गिंग बढ़ती है, डिजायर बढ़ती है। मेंटल पाश है कि ये मैंने सोचा है, दिस इज माय थॉट, यही सही थॉट है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा सोचती हूं ट्रंप के बारे में या इस वॉर के बारे में, इसके अलावा कोई सच नहीं है, ये मेरा आइडिया है, ये किसी और का आइडिया है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। मदर तो ये भी कई बार कहती हैं कि किसी का कोई ओरिजिनल आइडिया है ही नहीं, कहीं ना कहीं एक प्लेन ऑफ आइडियाज हैं जिससे हम रिसीव कर रहे हैं। सो द पॉइंट हेयर इज कि इन सब चीजों के साथ ये जो ईगो है ना वो जुड़ जाती है और ईगोइज्म बन जाती है, ईगोइस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं विच क्रिएट्स डिसहार्मनी। So I go back to the very wise thing one of the students said, lack of respect. Lack of respect भी इसी का पार्ट है। I do not respect other person's idea. I do not have enough respect for other person's emotion. Or I do not respect another person's approach to this situation. So tomorrow maybe we'll talk more about in the context of work situations. But बहुत ऐसे छोटे छोटे tips हैं. I can send to Meera some more points that I had put together in my slides. So you can all go through this at your own time, in your own pace. But मुझे लगा कि जैसे अब हम लोग साथ हैं तो थोड़ा interaction होना चाहिए। और कोई question? थोड़ा सा टाइम है, कोई और क्वेश्चन हो टीचर्स को, स्टूडेंट्स के इसी बारे में? No ego problems. हाँ, No ego problems here. नो Yes. ईगो प्रॉब्लम्स, सब ईगो ट्रांसेंड कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। No ego. अच्छा, एक फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा किया होगा कि कहीं पे छोटी सी बात हुई, कॉन्फ्लिक्ट आया या कोई सिचुएशन पैदा हुई, जब आपने अपने आप को कैच किया है दैट यू आर जस्टिफाइंग योर एक्शन, सेल्फ जस्टिफिकेशन किया है कभी? कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं तो ये चाह रही थी, मैं तो ये कह रही थी। यस सर, प्लीज। I feel that everyone has done it in some parts of their life. Yes, correct. So but it takes courage to admit this, right? It takes sincerity and honesty and humility to say this. We have all done it. We all do this self justification business. बट श्री अरबिंदो एक जगह ये भी याद दिलाते हैं कि सेल्फ जस्टिफिकेशन भी ईगो का एक सिम्टम है, एक साइन है, और इग्नोरेंस का, एरोगेंस का साइन है। जब हम अपने ही चॉइसेस का, अपने ही आइडियाज को बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है, यही सही है, ऐसे ही सही है, दैट इज नथिंग बट अवर ईगो कमिंग आउट। सो वी शुड बी एबल टू कैच दैट ऑल्सो। एक और क्वेश्चन मैं पूछती हूं, how many times have we found faults in others? All the time? Most of the times. Huh? All the time. Most of the times we see. Mostly all the time, right? नहीं, मैं तो बिल्कुल दूध के धुली हूं, सब गलती आपकी ही है, राइट? दैट्स व्हाट वी से। या फिर हम अगर और कई बार सिचुएशन होती है तो हम उसको थोड़ा ड्रामेटिक कहते हैं, नहीं नहीं आप में तो कोई गलती नहीं है, सारा तो मैं ही खराब हूं, मैं ही हमेशा ऐसे करती हूँ। दिस इज ऑल्सो अनदर hurtful way of saying the same thing. So again the tendency is to find fault in others. इसके बारे में माँ और श्री अरबिंदो बहुत अच्छी बात समझाते हैं। वो ये कहते हैं when we
Actually, this is a very bad habit because when we are trying to find fault in others, एक तो ये कि वो fault हमें इसलिए दिखता है कि कहीं ना कहीं वो हम में भी है, because other is like a mirror to us. एक तो बात ये, दूसरा वो ये भी कहते हैं कि when we try to find fault in others, it actually does not help the other person. But the chances are that the same fault may increase in you. Look at it from a psychological perspective, it's very interesting. Chances are that it may increase in you because now your attention is on that particular aspect of human character, of human nature. अब आपने कहीं अपने अंदर, ये सब मैंने क्यों कहा योगा इज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, कहीं आपने अंदर एक दरवाजा खोल दिया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमन नेचर का, ये हमारे अंदर भी एंटर कर सकता है. So, too much fault finding in others actually creates more difficulty for others. इसीलिए मां श्री अरबिंदो बात करते थे कि do not gossip about others, do not talk too much about others, but let's be honest, how much time we spend in our day doing that? Quite a lot, right? बच्चे भी करते हैं, teenagers भी करते हैं, बड़े भी करते हैं. We talk a lot about others. और आजकल ये जैसे कई बार वो क्लीशे बात बन चुकी है, बट ये सही है, कहीं ना कहीं उसमें ट्रुथ होता है, हर क्लीशे में कहीं ट्रुथ है. टॉकिंग टू मच अबाउट अदर्स is the sign of a very low level mind. We should be thinking about or talking about ideas, talking about, ideals even, right? But हम सबको हमारे अंदर जो वाइटल है ना, उसको ड्रामा बहुत पसंद है, इसीलिए हम गॉसिप करते हैं. एंड दैट अगेन लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ वीकनिंग ऑफ द वाइटल. सो वाइटल के ये फीलिंग्स, डिजायर्स, इम्पल्सेस, इमोशंस, इनको खत्म नहीं करना है, लाइफ को सूखा नहीं बनाना है, बट इनको प्योरीफाई करना है, इनको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि इसी में रस है, जीवन का रस भी इसी में है, लाइफ का रस भी इसी में है, लेकिन इसको प्यूरिफाई करना है. दैट इज द पार्ट ऑफ साधना या योगा. उसमें ही हार्मनी का बीज छुपा है, जैसे कहते हैं ना, पॉसिबिलिटी छुपी है. Any other question or can we close now? Yes, there was one question. Namaste. Is there any relation between expectation and ego? If there is more expectation, there is more desire. Then is there any possibility of creating ego clash or ego problem? Absolutely, sir. Very good question. आपने थोड़ा लेट पूछा, अभी टाइम हमारा खत्म होने वाला है, पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Is that okay if I take few minutes, Meera Di? Please do, thank you. Okay, okay. So yes, expectation तो है ही पूरा ईगो का बिजनेस, क्योंकि ईगो है तो ईगो में डिजायर है, राइट? ईगो जो वाइटल ईगो है हमारी, जो प्राणमय ईगो है, उसका बहुत बड़ा पार्ट है डिजायर. डिजायर इज नथिंग बट अनदर एक्सपेक्टेशन. डिजायर को एक जगह पे श्री अरबिंदो डिफाइन करते हैं कि देखिए, ये सारा सृष्टि, सारा संसार, पूरा जो मैनिफेस्टेशन है, ये बेसिकली ईश्वरीय सत्ता का, डिवाइन का ही एक फॉर्म है. डिवाइन ने जब अपने आप को मैनी में एक्सप्रेस किया, तो ये सारा संसार है, सारी सृष्टि है, पूरा खेल है, करेक्ट? लेकिन क्या होता है कि हम जब, हमें ये ऑर्डिनरीली, हम जब तक हमारा प्रभु के साथ वननेस नहीं हुआ, डिवाइन के साथ वननेस का कनेक्शन नहीं है, तब तक हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं. हम ना अपने अंदर के ईश्वर को देख पाते हैं या उससे कनेक्टेड हैं, ना मैं आपके अंदर के ईश्वर को देख पाती हूँ. मेरे लिए मैं सेपरेट हूं, आप सेपरेट हैं. इस सेपरेशन में हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है. मैं अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी ही मानती हूं. इसको हमारे शास्त्रों में अविद्या कहा गया है. ईगो बेसिकली अविद्या का पार्ट है. नेचर जो है वो अविद्यामयी एक तरह से है, प्रकृति. उसी को ट्रांसफॉर्म करके विद्यामयी प्रकृति,
हमारे गीता में एक शब्द आता है परा प्रकृति, उस वहां पे जाना है, करेक्ट। लेकिन हम वहां पे नहीं है। इस इग्नोरेंस में मैं अपने आप को सेपरेट मानती हूँ, मेरी डिजायर्स, मेरी इच्छाएं, मेरा सब कुछ जो भी है। अब मैं आपके साथ एज कुलीग अगर हम लोग दो काम कर रहे हैं, तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, या आप मेरे सुपीरियर हैं या मैं आपकी सुपीरियर हूं, जो भी रिलेशन है, मैं ये चाहती हूँ, या आप मेरे भाई हैं मान लीजिए, कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसे बिहेव करे। मैं जब मान लीजिए मैं जब इमोशनली वीक हूं, मेरा भाई मुझे सपोर्ट करे, इतनी सी एक्सपेक्टेशन है। अब मेरे भाई की लाइफ में बहुत कुछ और भी चल रहा होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ईगोइज्म में सपने को सेपरेट मानती हूँ। जब मैं अपने अंदर के ईश्वर के साथ जुड़ी हूं, तो मैं अपनी ईगो से बाहर हूं। तब मैं ये समझ सकती हूँ, जब मैंने अपने ईश्वर को पा लिया, तो मैं ये भी देख पाऊंगी कि वही ईश्वर आप में भी है, तो आप और मैं सेपरेट नहीं है। तब ये एक्सपेक्टेशन आएगी ही नहीं। वो मैं बहुत एक आइडियल की बात कर रही हूं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं टू आइडेंटिफाई द प्ले ऑफ ईगोइज्म एज रिफ्लेक्टेड इन द एक्सपेक्टेशन, to become aware of that. So, what is the solution? The solution can be very simple as to have no expectations. But that is not easy to do. क्योंकि we are always living in that egoistic separateness, जिसे मैं अविद्या की बात कर रही हूं, जिसके बारे में कहा। तो maybe practical solution is to be first mindful of what I expect, how fair is it, and to also to slowly detach myself from the expectation, कि ठीक है, हाँ अच्छा होता अगर मेरा भाई मेरे इस इमोशनली वीक मोमेंट में मुझे संभालता या मुझे समझता, बट इट्स ओके इफ ही इज नॉट एबल टू डू सो। थोड़ा सा डिटैच होना, थोड़ा सा इनडिफरेंट होना, ये स्टेप्स हैं उस प्रोसेस के लिए, कि इट्स फाइन, इट्स ओके, and ultimately solution to have find all the support। मदर एक जगह कहती हैं कि डिवाइन से बड़ा और कोई सपोर्ट नहीं है। रिफ्यूज जो फाइनल, if I am having an emotionally tough time, to find support in the divine। तो उससे क्या होगा कि हम अपना वो शिफ्ट कर देंगे। मतलब मैं अभी तो बहुत ही, मैंने आपको एक सीड दिया है। अगर हम मदर श्री अरबिंदो की राइटिंग्स में ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ें, तो इट इज सच अ वास्ट थिंग दैट दे हैव कवर्ड। हम लोगों ने एक ई बुक निकाली है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड योगा। मैं मीरा दी को उसका लिंक भेज दूंगी। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ छोटे छोटे सेक्शंस लिए थे श्री अरबिंदो और माँ की वाणी के, और कुछ फ्रेश आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं ऑन दिस थीम ओनली, ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस, फ्रेंडशिप्स, मैन वुमेन रिलेशनशिप, फैमिली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने उसमें लिए थे। सो दैट माइट बी हेल्पफुल टू गो डीपर इनटू दिस। So again, the point is to become mindful, aware of the expectation, to be able to be slightly detached gradually, slightly भी नहीं मैं कहूँगी, gradually, धीरे धीरे उससे detach हों, और ultimately find complete refuge in divine। क्योंकि उसके अलावा बाकी सब relationships temporary हैं। वही एक परमानेंट रिलेशन है। Somebody wants to share something. यस यस। पर एक मैं बात और भी कहूंगी, आप आइए मैं जब तक वो मैं आप आइए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सब रिलेशनशिप्स काट देने हैं। दैट विल बी द ओल्ड स्पिरिचुअलिटी। वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो हम वहां पे उस पॉइंट पे अभी हम गए नहीं, क्योंकि वो फिर वही बात हो जाती है कि ये सब मोह माया है, मोह माया से हटिए। नहीं, मदर यूजेस अ वर्ड कि वाइटल हमेशा हर रिलेशनशिप का पार्ट रहेगा, लेकिन वी हैव टू, शी यूजेस द वर्ड, वी हैव टू स्टे विजिलेंट ऑन आवर ओन गार्ड, कि कब वो बहुत हावी ना हो जाए, वही वही पूरा एक सामने एक वाइटल का पुतला ना खड़ा हो जाए।
So constantly being on our guard. So I'm going to send this quote also. All the quotes that I had collected, I'll send it to Meera Di. So you can have some discussion on later on amongst yourselves as well. Yes, please, ma'am, kahiye. I don't question, it's more like the sharing which I want to do with you. When you're talking about a concept of egoism, you're talking about relationship. It's basically what I believe is that you need to change your thinking perspective. You need to change your mindset, the way you look at things basically. When you say you need to put yourself into the shoe, you basically giving a space to yourself, right? So be in different situations, whether you talk about your own self, you're talking about your relations with people around you, right? So it's basically how you start looking at things, right? So instead of people being judgmental, if you try and think, and कोई भी चीज देखने का अगर आप नजरिया बदल दो, so you don't have this concept of ego and egoism. Basically, you start detaching because, as you said correctly, that you find a link somewhere. Right? There is some power, there is some force with which you feel a connection with. So at times of need and desire, and when you want it, at times of need, that force automatically binds with you, it gels with you, and then you feel things are more controlled, things are more relaxed. So that's a Yes. personal observation also, which I have noticed over a period of time. Yes, and thank you. Thank you for sharing this and being so articulate about it. Absolutely. Again, I want to just point out one thing. इसी कोई आप ही के point को build करने के लिए there are अभी श्री अरबिंदो मदर के इतने वॉल्यूम्स हैं, लेकिन कुछ मंत्र हैं ना जो ऐसे हम जब पढ़ते रहते हैं तो कुछ बातें बिल्कुल अपने अंदर चली जाती हैं जो बार बार रिमाइंड करने पे एक तरह से मंत्र की तरह काम करते हैं. देयर इज वन ब्यूटिफुल सेंटेंस ऑफ श्री अरबिंदो जो कि बिल्कुल फिट बैठता है जो आपने शेयर किया कि आप अपने अंदर जब आप देखते हैं और यू फील कि कौन सा हम किस फोर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं अपने आप को in the context of human relationships, in the context of our connections with others. We were talking about ego. ईगो के साथ साथ एक और चीज किसी सर ने बताया, उन्होंने एक्सपेक्टेशन. ईगो के साथ एक और जो चीज जुड़ती है वो है अटैचमेंट, जिसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं. सो देर इज वन वे श्री अरबिंदो सेज लव इज द बेसिस, आइडियली लव शुड बी द बेसिस ऑफ ऑल हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो कोलीग्स में हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स में हो, किसी भी हो, या इवन अमंग नेशंस. राइट? एक तरह का लव, एक तरह की एफिनिटी होनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए. बट अटैचमेंट ही सेज इज egoism. What is the thing? Attachment is egoism in love. What is the definition of attachment? जब लव में egoism घुस जाए वो अटैचमेंट बन जाता है. कि उसमें क्या आता है? उसमें पोजेशन आ जाती है कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था या मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने उसका कॉल पिक किया, मेरा कॉल पिक नहीं किया. वो उसके बर्थडे पार्टी में तो चली गई, पर जब मैंने एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया तो उसने कहा आज मेरा टमी एक है या हेड एक है या आज मेरी कहीं और अपॉइंटमेंट है, समथिंग लाइक दैट. राइट? सो इसमें पोजेशन आ गई, अटैचमेंट आ गई. ये भी ईगोइज्म का एक्सप्रेशन है. So when we go through the process that you so beautifully articulated, ma'am, in a way we are becoming cognizant, aware, mindful of these movements that are happening within us. और उसका solution भी आपने बहुत अच्छा बताया. Attachment को कैसे control करेंगे? Attachment को control करेंगे किसी higher object के साथ attach करके. क्योंकि सिर्फ ये कहना कि तपस्या करके भगवान का नाम लेके जप कर करके अपनी अटैचमेंट्स खत्म करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट इफ आई पुट माई सेल्फ एंड इफ आई से कमिट, बिकम सिंसियर दैट नो, फॉर मी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, लेट्स से, द वर्क दैट आई डू. If I become more sincere towards that, if I attach myself to a higher goal in life, the lower attachments, attraction becomes easier to let go. तो अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलने का ये एक फॉर्मूला है.
attach ourselves to something higher. The highest is of course divine. एक जगह श्री अरबिंदो कहते हैं सबके लिए लव आना आसान नहीं है, लेकिन the least we can have is goodwill and a sense of unity. Unity भी किस पे basis होगी? When we are working for a common goal. अगर हम एक संस्था में काम कर रहे हैं, मान लीजिए, ये भी आसान नहीं है ले आना प्रैक्टिस में, बट दिस इज व्हाट वी डू इट. लेट्स से स्टूडेंट्स आर हियर, स्टूडेंट्स आर गिवन वन प्रोजेक्ट टू डू. उसमें ईगो कॉन्फ्लिक्ट, 10 बच्चों का एक ग्रुप है, उसमें ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. इफ दे से ओके it's my idea, your idea, all we are conflicting, having this and that. But if we keep our focus on the higher goal, which is completion of the project in time, we may be willing to detach ourselves from our own specific ideas and move towards a greater harmony. So there are all these practical ways to work on ourselves. Yeah. So what should we do? Shall we close here now, Meeradi? They have to, some of them have to leave, some of them have classes, we have, Yes. classes of, enrichment. So they Correct. have- And thank you, I think there were perhaps some points that maybe we could continue tomorrow, though it's Sure. a different topic. And I think children may not be such a good idea. There will be more teachers that I would like to involve. Yeah. If you'd like to address students, then we can, but the older students go away at 12:30. 11th and 12th. So perhaps for next time, or what do you think? I think tomorrow we can just focus I was expecting this time also, mostly teachers. So Yes. so tomorrow we'll do that because that's what we were talking in terms of topics for tomorrow, more collegial, workplace harmony. Yeah. So and I think even for Friday, you decide if you want to bring in students. I'll make my presentation differently. I'll speak to you about that. ठीक है. There's somebody who's in Delhi and she's a teacher trainer actually. And she said, will you connect me? So I want to take your permission to do that. Is that all right? Now? No, tomorrow. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. We'll just speak on the phone after we close this. Yeah. ठीक है. Yeah. Thank you very much on behalf of all of us, I think, because you've answered some very important questions that I think people were thinking about. And I think this is one of the most needed subjects for all of us, because we are all victims of our egos and our predilections. So Yeah. thank you for that. Thank you. Tomorrow, if there are any questions, there will be some more teachers tomorrow. Yes. There are questions, they'll send them to you before. Yes. That way it will be good. Yes. And if the teachers can also just sit a little bit up front, so it's easier for me to. Yeah. It's on a group and we'll be right in front. Yeah. Sure. We'll be connected on Wi-Fi, so no issues there. So Okay, thank you great. so much. It Thank was as I you. expected, a really good sharing. Thank you very much. Thank you, Meeradi. And I hope, especially for the children, I hope some of it might be helpful. अगली बार friends में झगड़ा हो तो शायद कोई बात ध्यान आ जाए. So just I hope some of it has been useful. ठीक है? Yeah. Okay, thank you so much. All my best wishes to you all. Thank you. Namaste. Bye. Okay.